Hello friends. Friends, it costs nothing to say please and thank you. But forgetting those magic words can cost you everything. When you say please and thank you are displaying kindness and respect. While that's a proper sign of manners, that's only the half story. When you make the efforts to do small things well, you are much more likely to do big things well. That's because taking pride in what you do, that's a habit forming and it spills over to other areas of your life. On the other hand, when you neglect small things, you guessed it, you are developing poor habit. Therefore, every time you break a promise, neglect your appearance, fail to answer an email, forget a special occasion, treat authority with disrespect, tell a lie, show up late, use foul language, or raise your voice, that time consider a significance of your action or inaction. They may come back to bite one day. So friends, I'm Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Friends, today we are going to learn manners and etiquettes through a beautiful lesson that is on saying please, written by Alfred George Gardiner. But before watching this video, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. The name of the topic is On Saying Please, written by Alfred George Gardiner. First of all, let's see a brief introduction about the writer Alfred George Gardiner. Alfred George Gardiner, born in 1865 and he was died in 1946. He was born at Chelmsford in Essex in 1865. He started his literary career as a journalist. At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News, London, under the pseudonym, that is pen name, Alpha of the Bluff. He made regular contribution to the Daily News, the Manchester Evening News, etc. His essays are uniformly elegant, graceful, and humorous. The Pillars of Society, Pebbles on Shore, Many Furrows, and Leaves in the Wind are some of his best known writings. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. He raised the question of morality in everyday life. Let's begin the lesson on saying please. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. एक सिटी ऑफिस में, शहर के ऑफिस में एक लिफ्टमैन काम करता है. उसने जब एक पैसेंजर उस लिफ्ट में आने की कोशिश आता है, तब उस लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया और इस वजह से उस लिफ्टमैन को फ़ाइन हो जाती है, क्योंकि उसने जो ऑफेंस किया, उसने जो क्राइम किया उस पैसेंजर को बाहर फेंक देने की, इस वजह से उसको फ़ाइन हो जाता है. और अनडाउटली और बेशक इट वॉज़ रॉन्ग, उसने जो भी किया लिफ्टमैन ने, ये बहुत ही गलत था. इट वॉज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़. अब ये जो सारा किस्सा या सारी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ जो प्लीज़ वर्ड है, और जो पैसेंजर और लिफ्टमैन के बीच में जो प्लीज़ वर्ड, वो बोला नहीं गया था. द कंप्लेंट एंटरिंग द लिफ्ट, और जो जिसने एक कंप्लेंट की लिफ्टमैन के अपोज में, वो जो पैसेंजर, वो जब लिफ्ट में आया एंड ही सेड टॉप, उसने सिर्फ अंदर आने के बाद लिफ्टमैन को कहा था ऊपर, यानी ऊपर चलो, यानी टॉप फ्लोर पे चलो. द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज़. तब लिफ्टमैन ने डिमांड की कि आप मुझे सिर्फ टॉप मत बोलो, प्लीज़ भी उसके साथ बोलो, टॉप प्लीज़. यानी यहाँ पैसेंजर सिर्फ टॉप बोलता है एंड लिफ्टमैन इज़ डिमांडिंग टू से टॉप प्लीज़, एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड,
और ये जो कंसेशन है, ये जो रिक्वेस्ट है लिफ्टमैन की, वो पैसेंजर ने रिफ्यूज़ की, यानी उसको माना नहीं, उसको नकार दिया। मैं लिफ्ट प्लीज़ बोलने से नकार दिया, रिफ्यूज़ किया। ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, और उसने ये जो उसकी जो कॉम्प्लाई है उसके उसके उसको उसने डिक्लाइन किया, यानी नाकारा, ये माना नहीं, रिफ्यूज़ किया। एंड कंप्लाइन, उसकी जो रिक्वेस्ट नकारा, जो भी इंस्ट्रक्शन जो लिफ्ट में बोला कि मुझे प्लीज़ बोलो ये, बट हर्ल्ड पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, और ये बोलने से पैसेंजर जो लिफ्ट मैन है, उस लिफ्ट मैन वो पैसेंजर को हर्ल्ड, धक्का देता है, लिफ्ट से बाहर उसे धक्का देकर बाहर फेंकता है। दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग कॉमेंट ऑन अ मैनर टू फार। कॉमेंट मीन्स उसका जो एक्शन, उसका जो एक्ट, लिफ्टमैन का जो एक्ट था, उसका जो उसने जो किया कि क्या पैसेंजर ने प्लीज़ नहीं बोला, उसलिए उसकी वजह से लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। और ये जो कमेंट, उसका जो एक्शन था, इस मैनर से देखा तो इट वाज टू फॉर, ये बहुत ही ज़्यादा था, लिफ्ट से बाहर फेंक देना, कि सिर्फ उसने प्लीज़ नहीं कहा। सो दैट वाज टू मच, वी कैन से। डिसकर्टेसी इज़ नॉट लीगल ऑफेंसी। वैसे देखा जाए तो डिसकर्टेसी, जो बदतमीजी होते हैं, वो लीगल कानूनी गुनाह नहीं है, जो कि वो पैसेंजर ने प्लीज़ नहीं बोला, इट वॉज अ डिसकर्टेसी। लेकिन ये डिसकर्टेसी कर होना, बिहेव होना, ये कोई कानूनी गुनाह नहीं है। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज़ एजॉल्ट एंड बैटरी। और ऐसा कोई करता है तो सामने वाला एजॉल्ट एंड बैटरी नहीं कर सकता। एजॉल्ट का मतलब है अटैक करना। उसने डिसकर्टेसी बिहेव किया, सॉरी नहीं बोला, या कोई थैंक यू नहीं बोला, कुछ प्लीज़ नहीं बोला, तो ये न बोलने से उसके ऊपर एजॉल्ट करना, अटैक करना। और बैटरी मीन्स हाथापाई करना, मारामारी करना। इट इज़ नॉट एक्सक्यूज़, ये लीगल नहीं है, इसका मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं है, हम बोल सकते। इफ़ अ बर्गलर ब्रेक्स इन टू माई हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन। अगर कोई बर्गलर, कोई चोर मेरे घर में एंटर करता है, आता है, और मैं उसे मारकर उसे गिरा देता हूँ, द लॉ विल एक्विट मी। इस समय कानून मुझे एक्विट किया करेगा, यानी उस एक्विट मीन्स यानी मुझे वो कानून एक्विट करेगा, मुझे छोड़ देगा, मुझे माफ़ करेगा। एंड इफ़ आई एम फिजिकली एजॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विथ रीजनेबल वायलेंस। अगर कोई मेरे साथ फिजिकली असॉल्टेड होता है, यानी फिजिकली मुझे मारता है, मुझे पूरा अटैक करता है, तो इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, तो मुझे कानून परमिशन देता है कि मैं भी रिटेलिएट, यानी रिएक्ट करूँ, मैं उस पर अटैक करूँ विद रीजनेबल वायलेंस। रीजनेबल कुछ हद तक मैं भी उस पर उसी लेवल पर अटैक कर सकता हूँ, ये कानून मुझे परमिशन दे सकता है। लेकिन रीजनेबल वायलेंस का मतलब होता है कि उसी हद तक। लेकिन ऐसा आपको ऐसा परमिशन नहीं मिलेगा कि सामने वालों ने अटैक किया, थोड़ा सा आपको गुस्सा मारा, और आप उस पर उसके हाथ पाए तोड़ रहे हो, उसका मर्डर कर रहे हो। दिस टाइप ऑफ वायलेंस आप नहीं कर सकते हो। ओके, इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई असल्टेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ। ये अगर कोई चोर है जो घर में घुसा है, और जो कोई असेलेंट है जिसने अटैक किया है, उन्होंने कुछ मात्रा में कानून को तोड़ा है। डेफिनेटली कमांड्स ऑफ द लॉ, ब्रोकन द कमांड्स ऑफ द लॉ। ये जो उनका एक्ट है बर्गलर का और असेलेंट का, अटैकर्स का, उन्होंने कानून तोड़ा है कुछ हद तक। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स। लेकिन कोई भी कानून, लीगल सिस्टम अटेम्प्ट नहीं कर सकता, प्रयास नहीं कर सकता, किसके लिए? टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स। कोई बैड मैनर्स या कोई बैड मैनर्सली बिहेव करता है, ठीक तरह से नहीं बोलता, उसके अपोज में अगेंस्ट कोई कानून नहीं बना सकता है। जैसे कि उसने प्लीज़ नहीं कहा, तो उसने प्लीज़ नहीं कहा, इसलिए कानून से उसको सज़ा होनी चाहिए, ऐसा लेजिस्लेट या कोई नहीं कर सकता। और could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense। या could sanction, या आपको अलाउ भी नहीं कर सकते, आपको कुछ परवानगी नहीं या परमिशन नहीं मिलेगी, सैंक्शन नहीं होगा टू यूज़ वायलेंस, आप भी हिंसा करो, हाथापाई करो किसी के साथ, अगेंस्ट समथिंग which it does not itself recognize as a legal punishable offense। अगर सामने वाला का कोई जो भी एक्ट है
वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं, लीगली कानूनी तौर पर वो पनिशेबल, वो जो क्राइम पनिशेबल नहीं, तब तुम उसके अगेंस्ट वायलेंस या अटैक नहीं कर सकते। जैसे कि राइटर ने यहाँ एग्जांपल दिया है कि कोई बर्गलर, कोई चोर घर में घुसता है, तब उसके अपोज में हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उस बर्गलर ने, चोर ने कुछ कानून तोड़ा है। अगर कोई हम पर अटैक करता है, वो पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसके अगेंस्ट हम अटैक कर सकते। लेकिन किसी ने हमें सॉरी नहीं कहा, प्लीज़ नहीं कहा, इसलिए हम उस पर अटैक करें, दैट इज़ नॉट ए पनिशेबल, लीगली पनिशेबल ऑफेंस। तो ये लीगली पनिशेबल ऑफेंस है, क्राइम नहीं है, तो हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। सो यही है राइटर ने एग्जाम्पल देकर यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड वॉट एवर आवर सिंपैथी विद द लिफ्ट मैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ रीजनेबल। यानी कि अगर हमारी जो भी उस लिफ्टमैन के बारे में सिंपैथी है, ठीक है, उसने किया जो ठीक है, लेकिन एक बात हमें, वी मस्ट एडमिट, एक बात हमें यहाँ माननी पड़ेगी या स्वीकार करनी चाहिए, क्या, कि दैट लॉ इज़ रीजनेबल, कानून सबके लिए सेम है। सिंपैथी हम लिफ्टमैन के बारे में हो सकती है, लेकिन उसने जो किया पैसेंजर को बाहर फेंकने, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कानून के, द लॉ इज़ रीजनेबल मीन्स कानून के सामने सभी लोग सेम है। उसको उसने प्लीज़ नहीं कहा, ये कोई क्राइम नहीं है, तो इसकी वजह, इसके लिए आप उसको बाहर नहीं फेंक सकते। दैट इज़ द लॉ इज़ रीजनेबल। इट वुड नेवर डू इफ़ वी वेर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स। इस बात से किसी का भला नहीं होता अगर हमें लिबर्टी मिल जाती, अगर हमें आज़ादी मिल जाती, किसके लिए, टू बॉक्स पीपल्स ईयर, किसी के कान के पीछे फाइट मारना, इसकी अगर हमें लिबर्टी मिलती तो इससे किसी का भला नहीं होगा। बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर, अगर हमें किसी के बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो इस वजह से हम उसको फाइट मारे। बॉक्स का मतलब यहाँ फाइट, गुस्सा मारना। और द टोन ऑफ देयर वॉइस, या हमें उसकी आवाज़ पसंद नहीं आई, उसका बोलचाल हमें अच्छा नहीं लगा। और द स्काउल ऑन देयर फेस, या उसके फेस, उसके चेहरे पे जो नाराज़गी है, स्काउल का मतलब नाराज़गी, ये हमें पसंद नहीं है। तो इस बदले में इफ़ वी बॉक्स ऑन, इफ़ वी अलाउड टू फाइट, इफ़ वी अलाउड टू बॉक्स पीपल्स ईयर, कि अगर लिबर्टी होती, आज़ादी होती, तो इससे किसी का ही भला या फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता कि हम हर बात पर मारने पे, फाइट करने पे लगे रहे, तो आवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडल, तो हमारे जो मुट्ठियाँ हैं, हमारे जो हाथ है, ये कभी आइडियल ही नहीं हो सकते, कभी शांत नहीं बैठ सकते, हमेशा हम फाइट ही करते रहते कि छोटी छोटी बात पर लोगों को मारपीट छोड़ हो जाती है हर जगह। और उस वजह से क्या हो सकता, एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ ब्लड ऑल डे, और शहरों के जो भी गटर्स है, उस गटर्स में दिन भर ब्लड बहता रहता है, यानी सभी और खून खराबा दिखाई देता। आई मे बी as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation। यानी कि मुझे जितना भी अनसिविल लगता है, यानी बदतमीजी करना, अनसिविल बिहेव करना, वो मैं कर सकता हूँ, यानी सॉरी नहीं बोल सकता, प्लीज़ नहीं हो सकता। और क्योंकि द लॉ विल प्रोटेक्ट मी, इससे ये ऐसा होता है, तो अनसिविल में अगर बिहेव करता तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। जो कोई वायलेंट रिटेलिएशन करता है, मैं अनसिविल बिहेव किया, वायलेंट रिटेलिएशन यानी जो कोई हिंसा करता है, अटैक करता है वायलेंटली, मुझ पर प्रति हमला करता है, तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, लॉ मेरे फेवर में आ जा सकता है। आई मे बी होटी, मैं बहुत होटी हो सकता हूँ। आई मे बी होटी, मैं घमंडी हो सकता हूँ, और बुरिश, रूड हो सकता हूँ। एंड देर इज़ नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटर्न डाउन एन इल मैनर्ड फेलो। मेरे होटी होने से, मेरे बुरिश होने से, यानी मैं घमेंडी या रूड होने से मुझे कोई कानूनी पेनल्टी नहीं लग सकती। सिर्फ मेरे बारे में इतना लिखा जाएगा, इट मे बी रिटर्न डाउन, कि ये आदमी इल मैनर्ड है, यानी इसके पास कोई मैनर नहीं है, कुछ एटिकेटीज नहीं, कुछ अच्छे बिहेव नहीं करने वाला आदमी, इतना लिखा जा सकता है। बट नो बडी कैन
पनिश मी, लीगली कोई मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकता। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़, कानून मुझे कंपेल नहीं कर सकता, मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता टू से प्लीज़, प्लीज़ बोलने के लिए। और टू एट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल सेंसिबिलिटी, या मुझे इसके लिए कोई कंपेल या कंपलसरी नहीं कर सकता कि तुम्हारा आवाज़ एट्यून में लाओ, ठीक तरह से तुम बोलो कि जिन वजह से सामने वाले की सेंसिबिलिटीज़ यानी उसको हर्ट ना हो जाए, उनकी सेंसिबिलिटीज़ को हर्ट ना हो जाए, उसको बुरा नहीं लग जाए, इसलिए आपका आवाज़, आपका वॉइस ट्यून में लाओ या ठीक तरह से करो। नो बडी कैन कंपेल मी, कोई मुझे कंपलसरी या ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। एनी मोर दैन इट सेज दैट आई शैल नॉट वैक्स माई मुस्टैच, या कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मैं मुस्टैच ना निकालो, वैक्स माई मुस्टैच, और डाई माई हेयर, या मेरे बालों को काला न करो, और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक, या मेरे बैक साइड पर जो बालों की रिंगलेट्स है, पीठ पर, बैक पर बालों की लटे जो रिंगलेट्स है वो न रख सकता। ऐसा कोई मुझे कंपेल या ज़बरदस्ती कानूनी नहीं कर सकता, बिकॉज इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है। अर्थात यहाँ राइटर वांटेड टू से दैट कानून से, जिस तरह से आप सॉरी बोलो या ना बोलो, प्लीज़ बोलो या ना बोलो, इसके लिए लीगली आपको कंपलसरी नहीं किया जा सकता। उसी तरह से आप किस तरह से आपका पहराव, हाउ यू शुड बी लुक, मैं किस तरह से देखो, मैं बाल काले करो या ना करो, मुस्टैच रखो या ना, कोई इसके लिए भी मुझे कोई लीगली कोई मुझे कंपलसरी नहीं कर सकता। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस फॉर कॉम्पेंसेशन, यानी ये नहीं होता है किसी के बोलने की वजह से हमारा लैसरेशन हो जाती है, हर्ट हो जाती है, और हर्ट होने की वजह से उसके ऊपर केस बन जाता है कॉम्पेंसेशन के लिए, उसको कुछ पैसे देने के लिए ये कानूनी केस बन जाता है। ऐसा लीगली नहीं है। देर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर्स। तो ऐसे केसेस में किसी ने आपको सॉरी नहीं बोला या प्लीज़ नहीं बोला, इससे किसी की इंटेलेक्चुअल या मॉरल डैमेजेस नहीं होता। सो इसकी वजह से ये कोई कानूनी केस नहीं हो सकता है। दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। इसका ये मतलब नहीं होता कि जो डैमेजेस है, ये जो नेग्लिजिबल है, इसको हम निगलेक्ट कर, यानी जो हार्ट फीलिंग होने से, इससे दिन भर दुखी रहना या किसी कोर्ट तक खूनी होने तक जाना, ये ठीक नहीं है। It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had kicked on the shins for which he could have got legal redress. Probably हो सकता है द लिफ्टमैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट, लिफ्टमैन बहुत ही हर्ट हो चुका होगा जब पैसेंजर ने अंदर आने के बाद टॉप डायरेक्टली ऐसे बोला बदतमीजी से, what he regarded as a slur upon the social standing than he would have been if he had kicked on the shin. उसे ऐसा लगा कि मैं सोशली मेरा जो दर्जा है, मैं लिफ्ट मैन हूँ, मेरी ज़्यादा कीमत नहीं, इसलिए मुझे ऐसे कुछ भी बोल सकते, इस वजह से उसे थोड़ा डिसरिस्पेक्ट उसका किया गया ऐसा, इसलिए वो हर्ट हुआ होगा लिफ्ट मैन। और वो बोलता है अगर सामने वाला ने किक ऑन द शीन्स, यानी शीन्स यानी घुटने के नीचे का जो पैर होता है, वहाँ अगर किसी ने किक मारा होता यानी फिजिकली हर्ट किया होता, फॉर विच ही कुड हैव गॉट द लीगल रिड्रेस, लीगली उसको उसका भुगतान मिल जाता। आप फिजिकली मारते हो तो इसके वजह से लीगली आपको कुछ मिल जाता, लेकिन जो मेंटली हर्ट या फीलिंग हर्ट हो जाती है, इससे उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे वो बहुत इमोशनली हर्ट हुआ है लिफ्ट मैन। सो इस वजह से उसने पैसेंजर को बाहर फेंका होगा, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनली हर्ट हुआ है कि मेरी कुछ कीमत नहीं है, मैं सिर्फ एक लिफ्ट मैन हो, ऐसा उसने सोचा होगा। द पेन ऑफ अ किक ऑन द शीन सून पासेस अवे। अगर कोई पैरों पर हमें चोट मारता है तो उसका जो दर्द है वो थोड़े समय में जा सकता है, बट द पेन ऑफ अ वुंड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का वुंड जो जख्म हो जाती है, उसका जो दर्द है, और आवर वैनिटी
वैनिटी का मतलब जो घमंड है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस पर अगर जो चोट लगते तो पॉइजन होल्ड है, पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है। आई कैन इमेजिन दैट, मैं एक इमेजिन कर सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ। लिफ्ट मैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट। जो लिफ्ट मैन ने अगर उस पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर ना फेंका होता तो क्या हो सकता, जो उसको मेंटली चोट पहुंची है सॉरी न बोलने से, उसको कम लिखने से। सो वो जो फीलिंग है, वो जो चोट है, हर्ट है, ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर, पूरे दिन भर, पूरे जितने घंटे वो काम करता होगा उस लिफ्टमैन, वो पूरे दिन वही सोचता रहता, हर्ट हो जाता। एंड विजिटिंग इट ऑन हिज वाइफ, और जब वो घर पर पहुंच जाता तो वो अपना हर्ट, अपना जो गुस्सा है वो अपने वाइफ पर निकलता। इन द इवनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम, क्यों अपने वाइफ पर निकलता? वो उसका जो चोट है, उसका जो घाव है, इंसल्ट है, तो वो इंसल्ट का बदला वो अपने वाइफ पर निकलता, क्योंकि उसको रिस्टोरिंग इज इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस करना, जो साइकोलॉजी है, मानसिकता, उस शांत करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए वो घाव, वो चोट, वो गुस्सा अपनी वाइफ पर निकलता। ये न हो, राइटर को ये यहाँ बताना है कि लिफ्टमैन ने ऐसा सोचा हो कि मैं दिन भर मेरा दिन खराब ना जाए, दिन भर मैं दुखी ना हो, हर्ट फील ना हो, घर जाके मेरे वाइफ पर गुस्सा न निकालो। इससे बेटर है कि मैं मेरा गुस्सा, जो भी मैं हर्ट फील हुआ हो, वो पैसेंजर के ऊपर निकालो। और ये निकालने के लिए ही हैड थ्रोन अवे द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट। ऐसे राइटर वांटेड टू से हियर, राइटर यहाँ बताने की कोशिश करता है। फॉर देर आर फ्यू थिंग्स, वहाँ बहुत ऐसे कम चीज़ें होती है, मोर कैचिंग, जो हमें आकर्षित करते, दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। ऐसे कौन सी कम चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ें है बैड टेम्पर, हमारा गुस्सा, एंड बैड मैनर्स, हमारे जो बदतमीजी है, बदतमीजी से अच्छा बिहेव नहीं, ये लोगों को ये तुरंत अट्रैक्ट करती है। व्हेन सर एंथोनी एब्सोल्यूट बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, यहाँ एक राइटर ने एग्जांपल दिया है, एक एंथोनी एब्सोल्यूट है, वो अपने कैप्टन एब्सोल्यूट, एंथोनी एब्सोल्यूट एक बंदा नाम है, वो कैप्टन एब्सोल्यूट पर बुरा बर्ताव करता है। बुलीड यानी बुरा बर्ताव करना, जो जूनियर कैप्टन एब्सोल्यूट उस पर। द लैटर वेंट आउट एंड बुलीड हिज मैन, लेकिन इससे हर्ट होकर जो कैप्टन एब्सोल्यूट वो बंदा है, वो अपने जूनियर उस पर जाकर वो अपना गुस्सा निकालता है, वो उससे बुरा बर्ताव करता है। बुलीड हिज मैन फैग, वेड अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय, और वही फैग जिसके ऊपर कैप्टन एब्सोल्यूट ने बुरा बर्ताव किया है, वो फैग अपने जूनियर के नीचे उतर कर डाउन स्टेयर्स आता है और किक द पेज बॉय, जो पेज बॉय को लात मारता है। एंड एक सीनियर नीचे के जूनियर को, फिर वो जूनियर नीचे उसके नीचे जूनियर को बुलीड करते रहते, बुरा बर्ताव करते रहते, तो ये गुस्सा आगे वाले पे निकालते। जो पेज बॉय यानी जो वहाँ काम करने के लिए जो बॉयज़ रखा जाते हैं, सर्वेंट जैसे, उसे पेज बॉय कहा जाता है। सो ये एक एग्जाम्पल यहाँ राइटर ने दिया है। प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good. हो सकता है जो पैसेंजर डायरेक्टली लिफ्ट में आकर लिफ्टमैन को टॉप बोलता है, वो भी कुछ टेंशन में हो सकता है उसके एम्प्लॉयर ने, उसे बॉस ने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा होगा, इस वजह से वो हर्ट था पहले से, वो अपना गुस्सा लिफ्टमैन पर निकलता है। टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपैक एट द ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ, हो सकता है वो जो उसका जो बॉस है, जब घर से सुबह ब्रेकफास्ट करके उसके आया था, ब्रेकफास्ट के समय उसकी वाइफ, उसने उसे हैंड पैक किया होगा, भरा बुरा कहा होगा उसने, वाइफ ने, बॉस की वाइफ ने। सो बॉस टेंशन में होगा। टू हुम द कुक हैड बीन आइसोलेंट, अभी वाइफ ने क्यों अपने हैंड पैक किया बॉस को? क्योंकि हो सकता है कि उनके घर में जो कुक है वो ठीक तरह से उसने उस बॉस की वाइफ के साथ बर्ताव नहीं किया। द हाउस मेड हैड आंसर्ड हर बैक, और उस कुक के साथ जो हाउस मेड है उसने ठीक तरह से बर्ताव नहीं किया, ठीक तरह से नहीं बोला होगा। सो ये हाउस मेड, उसके बाद कुक, वाइफ, बॉस,
देन पैसेंजर एंड देन लिफ्ट। तो इस तरह से ये गुस्सा पास आउट होता होगा और पैसेंजर का गुस्सा, पैसेंजर ने डायरेक्टली प्लीज़ न बोलते हुए डायरेक्ट टॉप बोला और लिफ्ट मैन ने उसे बाहर फेंक दिया। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स। सो ऐसे पूरे जो वर्ल्ड है को हम इन्फेक्ट करते, बीमार कर देते अपने इल ह्यूमर से, यानी जो खराब बर्ताव बोले ह्यूमर से, इससे हम पूरे इन्फेक्शन फैलाती है। जैसे इल ह्यूमर यानी बुरा बर्ताव। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ। जो सामान्य जीवन जनजीवन है, इस सामान्य जनजीवन का के ऊपर ज़्यादा असर बैड मैनर्स का होता है दैन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। यानी कैलेंडर में पूरे साल में जो रियल क्राइम होते उससे जितना प्रभाव होना चाहिए उससे ज़्यादा जनरल लाइफ पॉइजनस हो जाता है। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आइज फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि मानो कि कोई पत्नी है, उसका हस्बैंड वैसा तो अच्छा है लेकिन गुस्से के कारण उसका आइज ब्लैक किया, यानी उसको वो बहुत मारा, चोट लगी और आई की आजू बाजू की साइड ब्लैक हो गई। अभी वो दुखी हो गई उसकी वाइफ। देर आर हंड्रेड्स हु लीव अ लाइफ ऑफ martyrdom under the shadow of Morse temper। अभी वो फिजिकली वो हस्बैंड ने हर्ट किया तो दुखी हो गई और उसको नेचुरली, लेकिन ऐसी कोई इतनी कोई पत्नियां है जो शहीदों के जैसे लाइफ जीती है ऐसे सिचुएशन मार्टिरडम में, जो कि मॉरस, मॉरस का मतलब होता है अनहैप्पी लाइफ जीती है कि क्योंकि उन पर बहुत इमोशनली मेंटली टॉर्चर करते हमेशा। ऐसे दिन बे दिन जीने वाले भी बहुत सारी वाइफ्स या महिलाएं हैं, यानी एक साइड फिजिकली हर्ट, इन अदर साइड मेंटल हर्ट। सो यहाँ लेखक ये बताना चाहता है कि मेंटल हर्ट इज़ मोर डैमेजिंग दैन फिजिकल हर्ट। But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners। परंतु लॉ है, जो हम कानून है, वो हमारा गार्डियन नहीं हो सकता, हमारा रखवाला नहीं हो सकता हमारा प्राइवेट मैनर्स में। यानी फिजिकल प्राइवेटली हम कैसे बिहेव करें, कैसा बर्ताव करें, दो प्राइवेट इमोशनल हर्ट बहुत डैमेजिंग है, लेकिन लॉ यहाँ कुछ नहीं कर सकता कि कानून की तौर से आप इस तरह से बिहेव करना चाहना, ये लॉ यहाँ अलाउड नहीं करता, या इसके लिए कोई लॉ या कानून नहीं बना हुआ है। बट नो डेक्लॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस। डेक्लॉग का मतलब है जो बाइबल के जो 10 कानून होते हैं, जो उनके नियम होते हैं, यानी बाइबल का जो नियम है वो भी जो ऐसे फैले हुए ऑफेंस है, जो हमें मेंटली ऑफेंस करने वाले बोलते हैं, हर्ट करने वाले, उसके ऊपर कोई उस कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर, या इसके लिए कोई बाइबल का नियम कुछ मैनेज कर सकता है, या कोई कोर्ट जो अदालत है वो भी उस पर एडमिनिस्ट्रेट या मैनेज नहीं कर सकता। या लॉ विच गवर्न आवर सोशल सिविलिटीज़, जो हमारी सोशल सिविलिटीज़ है, सामाजिक जो बिहेविंग है, बर्ताव है, इसके ऊपर कोर्ट का या बाइबल का किसी कानून का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि हम किस तरह से स्पीच दे। आवर स्पीच, द टिल्ट ऑफ आवर आईब्रोज, जो हमारे आईब्रोज के जो रेखा है कि हम गुस्से में कैसे, या हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, ऑल आवर मूड्स एंड मैनर्स, हमारा मूड्स कैसा होना चाहिए, हमारे मैनर्स किस तरह से कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर कोई भी कोर्ट या डेक्लॉग या बाइबल के कोई नियम कंट्रोल या मैनेज उसके ऊपर या उसके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं कर सकता। दीज आर द प्राइवेट। बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टेन सिंपैथी विथ हिम। वो लिफ्टमैन ने जो भी क्राइम किया है उसकी वर्डिक्ट, उसकी सज़ा उसने मिलनी है,
लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं, मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन सिंपैथी विथ हिम, उस लिफ्टमैन के बारे में सिंपैथी रखते। वो सिंपैथी क्यों न रखे, बट उसने जो एक्ट किया है वो पैसेंजर को बाहर फेंकने का, इसके कानूनी उसको वर्डिक्ट या जो भी पनिशमेंट है उसको मिलनी है, क्योंकि उसने एक लॉ ब्रेक डाउन किया है। While it is true that there is no law that compels us to say please, लेकिन ये भी बात सही है कि कानून हमें कंपेल या ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी को हम प्लीज़ बोले या थैंक यू बोले। देर इज़ अ सोशल प्रैक्टिस मच ओल्डर, लेकिन इस दुनिया में ऐसी सोशल प्रैक्टिस है, सामाजिक घटना ही है, एंड मच मोर सैक्रेड दैन एनी लॉ, यानी इस दुनिया में, समाज में, सोसाइटी में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, सैक्रेड है, जो कि किसी लॉ से भी बहुत पुरानी है और बहुत अच्छे है। द लॉ विच एन्जॉइंस, जो हमें कहती है, जो हमारी परंपरा रीति रिवाज जो बोलते हैं, पर बहुत सालों से आए हैं, सैक्रेड लॉज एन्जॉइंस अस टू बी सिविल, जो हमें सिविल बनाने के लिए कहते हैं। यानी इनडायरेक्टली लेखक ये बोलना चाहता है कि जो हमारी दुनिया की जो जीने के लिए जो रीति रिवाज या परंपरा ही बनाई है, वही हमें सिविल बनाती है, वही हमें अच्छे बिहेव करने के लिए कहती है। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस। और सबसे पहली सिविलिटी या सौजन्यता ये है, उसके लिए आवश्यकता कि जो आपको कोई सर्विस देता है, सेवा करता है, तो उसका आपको एक्नॉलेज होना चाहिए, उसको आपको जानना चाहिए कि मुझे किसी ने सर्विस दी है, सेवा दी है, और उस बदले में मैं कर्टसी दिखाऊं या मुझे कृतज्ञता दिखाऊं। प्लीज़ एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे आवर वे एज सोशल बीइंग। यानी कि समाज में जो भी हमें सर्विस मिलती है, जिसने आपको होटल में गए, हमें वेटर ने कुछ खाना ला के दिया या किसी ने हेल्प की, तो वहाँ उस समय हमें थैंक यू बोलना, प्लीज़ बोलना, ये हमारी सिविलिटी दिखाती है। दे आर द लिटिल कर्टसीज बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली। यानी ये जो छोटी छोटी ज़िंदगी में जीने की कला ही है, ये जो रीत है, किसी को प्लीज़ बोलना, थैंक यू बोलना, ये जो सिविलाइजेशन या सिविलिटी दिखाती है, इससे हमारी लाइफ में क्या होता है कि हमारी लाइफ की जो मशीन है वो ऑयल की तरह काम करते हैं। हमारे थैंक यू बोलना है, प्लीज़ बोलना, और हमारी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ सकती है। हर एक बात कानून से हमारा जीवन नहीं चल सकता। कुछ मैनर्स, एटिकेटीज़, सिविलिटीज़, कृतज्ञता, इससे हमारी लाइफ स्मूथली या स्वीटली चल सकती है। दे पुट आवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन एंड ईजी गिवन एंड टेक। एंड ये जो इंटरकोर्स है, ये जो हमारा मेल जोल है, कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है, प्लीज़, थैंक यू, यही बहुत ईजी हो जाता है। तो एक दूसरे का लेन देन ईजी हो जाता है, इससे तुम्हारा रिलेशन सोशल लाइफ में अच्छा रहता है। इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर डिक्टेटिंग टू इन्फीरियर, किसके बदले कि कोई सुपीरियर वरिष्ठ है, सुपीरियर है, सीनियर है, वो डिक्टेटिंग हुक्म बजाता है अपने इन्फीरियर के, जो हमसे नीचे कमज़ोर है, उनके साथ। इससे सीनियर जूनियर को डिक्टेट करता है, इससे जो बेस क्रिएट होगा वो ठीक नहीं होगा समाज में, सोसाइटी में, कि इसके बजाय जो प्लीज़, थैंक यू, कोई सुपीरियर क्यों हो, कोई इन्फीरियर क्यों ना हो, एक दूसरे से प्लीज़, थैंक यू, ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो सिविलाइजेशन या मैनर्स दिखाती है, अगर ये आते तो ये समाज में एक नींव बन जाती है। नींव यानी बेस बन जाता है समाज, अच्छा समाज बनने के लिए। इसलिए तो जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप है, उस हमारा कंट्री सिविलाइजेशन है, सिविलाइज्ड नेशन,
डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं है. So civilization is more powerful than dictatorship, we can say that here. So friends, we have finished here part 1 of this chapter. The remaining part of the chapter we shall cover up in next part 2, and very soon that part you will enjoy. Friends, I hope you might have liked this part 1 lesson. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, please write in comment box. Wish you best, wish you good luck. Take care. Thank you very much.